today we will talk about health. Okay, and here in this case you will try to understand how much health is responsible for economic development. Okay, so today's topic is people as a resource. It is topic of economics, right? And today's topic is health. Clear? How much health is responsible for production, for our economy? Clear? So here we have got many firms, they makes maximum profit. Okay? Firms are making maximum profit. It means the workers, they are skilled and workers are healthy. That's why these firms are making heavy profit. Okay? And they will try to employ such people, okay, who might not, मतलब अगर वर्क अच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं तो such people will not be appointed. है कि नहीं? What kind of people we will appoint? We will appoint such people who are healthy worker. ठीक है? Because ill health they will affect our production. है कि नहीं? So what we will have, every firm will appoint healthy worker. ठीक है? They will appoint healthy workers, right? Why it will happen? Because the health of a person helps him to realize his potential. ठीक है? Means good health reflect full potential, right? What is potential? Capacity. ठीक है? If you are fully healthy, then you can do your best. Again, means you can perform your work with high speed. ठीक है? A large amount, and you can work for long period of time, isn't it? That's why we require healthy person. ठीक है? And what will happen? Those people who are healthy, ठीक है, they have ability. Healthy people have ability to fight illness, isn't it? If you are healthy, then you can fight illness properly, isn't it? Means if there is communicable disease, if corona is spreading, if you are healthy, you have good immunity, you will not be affected. है कि नहीं? अगर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, डेफिनेटली यू विल बी अफेक्टेड. और उस फैक्ट्री में काम करेंगे, 2 ही दिन बाद आपको कोरोना चेक करके ले जाएंगे डायरेक्ट हॉस्पिटल. ठीक है? और वहाँ से डायरेक्ट परलोक सिधार जाएंगे, है ना? कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं. क्लियर? तो हेल्दी पर्सन जो होगा वो क्या करेगा? इलनेस को फाइट कर सकता है. ठीक है? एंड अनहेल्दी पर्सन बिकम्स अ लायबिलिटी फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन इंडीड. ठीक है? अनहेल्दी पर्सन क्या होता है? ही बिकम्स लायबिलिटी, बोझ बन जाता है उस ऑर्गेनाइजेशन पे. रोज बीमार रहते हैं. पता लगा कि टाइम, वहाँ फैक्ट्री का टाइम 9 बजे का है एंड ही इज़ कमिंग एट 11 o'clock, at 8 o'clock. He has excuses, sir, I had to attend doctors. है कि नहीं? I had to take medicine. और पता लगा 2 घंटे बाद छुट्टी लेके घर चले गए. तो ऐसे वर्कर्स क्या हैं? दे आर लायबिलिटी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है? तो अनहेल्दी people are
लायबिलिटी, ठीक है, लायबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं, ये ऑर्गेनाइजेशन की लायबिलिटी है। क्लियर? सो सच लायबिलिटी दैट शुड बी इग्नोर्ड. If we are healthy, then we are what? We are resource, skilled resource for organization. Clear? Hence you can say that health is an indispensable basis for realizing one's well-being. ठीक है? Therefore, what happened? Improvement in health status of the population has been priority for the country. ठीक है? तो improvement in health status is the priority, ठीक है, of a country, right? It is the priority of a country that health should be improved. ये उस कंट्री की जिम्मेदारी है, उसकी पहली प्रायोरिटी बनती है, ठीक है। फर्स्ट वर्क दैट आवर सिटीजन शुड बी हेल्दी, ठीक है। इफ कोरोना इज स्प्रेडिंग देन इट इज ड्यूटी ऑफ कंट्री दैट एवरीबडी शुड बी प्रोटेक्टेड, ठीक है, बिकॉज चिल्ड्रन स्पेशली अप टू एज ऑफ 8th क्लास, ठीक है, दे आर नॉट मेंटली मेच्योर, दैट्स वाई दे आर ड्रॉप्ड, उनकी छुट्टी कर दी गई है कि नहीं। एंड द स्टूडेंट्स फ्रॉम 9 to 12 they are quite mature, they can fight with this disease, they know how to wear mask well in time, they know how to cultivate cleanliness and hygiene, right? That's why their schools are running, right? तो ये किसकी प्रायोरिटी थी? दिस इज द प्रायोरिटी ऑफ कंट्री। अभी कुछ सिटीजन्स को कुछ हो जाता है तो इट इज दैट कंट्री इज क्रिटिसाइज्ड, द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री इज क्रिटिसाइज्ड, isn't it? So it becomes a problem, right? So we can say that improvement in health status is priority of a nation or a country. Clear? So what will happen? This should be our national policy, ठीक है। So health is a part of national policy. Clear? National policy. We should improve health. This should be policy of nation, ठीक है। And everybody they should realize this thing that priority should be given to health. Clear? So in this way you can say aims at improving accessibility of health care, family welfare and nutritional services, ठीक है। There should be accessibility, ठीक है। What should be there? Accessibility of health care, ठीक है। There should be accessibility of health care means हमारी जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है दे शुड बी इन आवर रीच, हम वहाँ तक पहुँच सकें। पता लगा कि हमारा हेल्थ केयर सेंटर फैज़ाबाद में है, ठीक है, और अम्बेडकर नगर वालों को भाई कोई प्रॉब्लम हुई तो फैज़ाबाद जाएंगे इलाज कराने, इट इज़ नॉट एक्सेसिबल, वो हमारी पहुँच में होनी चाहिए, ठीक है। और इसके साथ फैमिली वेलफेयर एंड न्यूट्रिशनल सर्विसेज भी होनी चाहिए, ठीक है। फैमिली वेलफेयर, ठीक है, एंड न्यूट्रिशनल, ठीक है, वैल्यूज। क्लियर? ऑल दीज थिंग्स दे शुड बी प्रोवाइडेड बाय नेशन। ये नेशन की ड्यूटी है, ठीक है। कंट्री की ड्यूटी है कि हेल्थ केयर शुड बी एक्सेसिबल, फैमिली वेलफेयर शुड बी गिवन and nutritional values or nutritious food should be provided to every citizen, ठीक है। तो हमारी accessibility of health care comes from district hospitals. Government has established district hospitals in every district, ठीक है। At block level there are primary health centers, ठीक है, and in most of the big villages there are also government dispensary, है कि नहीं। So all these things they are provided by country under its national policy, ठीक है।
वो अपनी नेशनल पॉलिसी के तहत ये सारी योजनाएं चल रही हैं, ठीक है। तो ये न्यूट्रिशनल फूड्स, हमारे न्यूट्रिशनल सर्विसेज भी हमारे में है। फैमिली वेलफेयर, फॉर फैमिली वेलफेयर वी हैव गॉट मेनी टाइप्स ऑफ थिंग्स, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर आवर फैमिली। आंगनबाड़ी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, है कि नहीं। देर आर मेनी लेडीज, आशा बहू होती हैं गांव में, है कि नहीं, एंड मेनी अदर पीपल दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, सच टाइप ऑफ फैमिली वेलफेयर सर्विसेज। बच्चों को टीका लगा कि नहीं लगा है कि नहीं, फैमिली केयर करना, राइट। और कहीं हमारा इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट तो नहीं बढ़ रहा है, कहीं 1 साल से कम एज के बच्चे तो नहीं मर रहे हैं, उनको टीका लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है। और बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, बहुत सारे रूरल सेक्टर्स हैं, ठीक है, वहाँ डिलीवरी का केस होता है एंड दे आर अनेबल टू रीच हॉस्पिटल, तो उनको हॉस्पिटल सर्विस प्रोवाइड की जाती है। तो ये किस पॉलिसी में आ रहा है, इट कम्स इन नेशनल पॉलिसी, ठीक है। हु विल प्रोवाइड ऑल दिस फैसिलिटी, गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री, है कि नहीं। दिस इज नेशनल पॉलिसी एंड देन आवर हेल्थ स्टेटस विल बी इम्प्रूव्ड, ठीक है। तो इसके साथ स्पेशल फोकस ऑन अंडर प्रिविलेज सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन, फोकस शुड बी गिवन, ठीक है, फोकस should be given, should be on underprivileged. What do you mean by underprivileged? Means those people who are not getting any privilege. For example, scheduled caste, scheduled tribes, rural laborers, landless laborer, agricultural laborer, ठीक है, widow families, understand, and many other segments, ठीक है, हु आर डिप्रेस्ड क्लास, जो दलित लोग हैं, ऑप्रेस्ड क्लास, ठीक है, ऑल सच पीपल शुड ऑल्सो बी फोकस्ड। इट इज़ ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट और कंट्री, दे शुड गिव देम फ्री मेडिसिन, है कि नहीं। अभी आपने देखा हॉस्पिटल्स में हमारे आयुष्मान भारत एक योजना चल रही है, इट इज़ फॉर अंडर प्रिविलेज्ड पीपल, ठीक है, दे आर गेटिंग फ्री ट्रीटमेंट, ठीक है। Any type of treatments are provided in hospitals for such people, ठीक है, who are underprivileged. This is under government's national policy. ये हमारी कंट्री की नेशनल पॉलिसी के तहत है, क्लियर। So we can say that over last 5 decades India has built up vast health infrastructure, ठीक है, और इसके साथ साथ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर, ठीक है, उस सारे सेक्टर्स में, और हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है, हर जगह हमारे पास क्या हो गया है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हैज बीन डेवलप्ड, ठीक है, गवर्नमेंट हैव डेवलप्ड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, गवर्नमेंट हैज डेवलप्ड हेल्थ infrastructure, clear. How government has developed this infrastructure? You have seen district hospital, ठीक है, मेडिकल कॉलेजेस, आपने देखे ना बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, दे आर इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग जिसमें बहुत तरह के डॉक्टर्स हैं, हर तरह के जो है क्या कहते हैं ट्रीटमेंट्स पॉसिबल है कि नहीं। इसके अलावा आपने अभी महामाया वाला देखा हुआ है हॉस्पिटल, है ना, टांडा रोड पे है, राइट, मेडिकल कॉलेज जिसको कहते हैं, एंड योर प्राइमरी हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ठीक है, ये सब क्या है हमारे, दे आर गवर्नमेंट डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। सो दीज मेजर्स अडॉप्टेड have increased life expectancy to over 65 years in 2011, ठीक है, life expectancy, ठीक है, increased, ठीक है, due to गवर्नमेंट एफर्ट, ठीक है। व्हाट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दिस इज अ क्वेश्चन, ओके, मीन्स द एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ, ठीक है, ऑफ अ कंट्री फॉर अ सिटीजन,
कितना दिन तक जिंदा रहेंगे? आप कितने दिन तक जिंदा रहने की उम्मीद करते हैं? 65 ईयर, है कि नहीं? इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? इट इज 65 ईयर्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2011 कॉन्सेंसस, ठीक है। 2011 के अकॉर्डिंग हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, ठीक है, हम लोग ये मानते हैं कि हमारी कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा लोग 65 ईयर तक एवरेज जिंदा रहते हैं। उसके बाद कोई गारंटी नहीं, ठीक है, कब चल बसे, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट हैज़ कम डाउन फ्रॉम 147 to 47, ठीक है। इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, रिड्यूस्ड फ्रॉम 147 to 47, और ये 147 हमारा इनफैंट मोर्टेलिटी रेट कब का था? इट वाज 1951, ठीक है। ये 1951 का इनफैंट मोर्टेलिटी रेट था, क्लियर? जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ था उसी के एक साल बाद का कैलकुलेशन, और ये अभी दूसरा हमारा रिड्यूस होकर के 2010 का है ये, ठीक है। इन 2010 में ये इनफैंट मोर्टेलिटी रेट है। So what is infant mortality rate? This is a major question, है कि नहीं? आपने इतना तो देखा कि हमारी इनफैंट मोर्टेलिटी रेट घटी है ना, रिड्यूस्ड, ठीक, मतलब मरने वालों की संख्या एक साल से पहले, ठीक है। द नंबर ऑफ डेथ, ठीक है, ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, बिलो 1 year ऑफ एज, ठीक है, पर 1000 पर्सन इन अ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। क्या होगा? नंबर ऑफ डेथ्स बिलो 1 year, ठीक है, पर 1000 पर्सन, ठीक है, पर एनम। दिस इज नोन एज इनफैंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। मीन्स द चाइल्ड कुड नॉट सेलिब्रेट हिज फर्स्ट बर्थडे, अपना फर्स्ट बर्थडे मनाने से पहले ही चल बसा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड योर इनफैंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। दिस इज इनफैंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। सो व्हाट इट शोज, पहले 1951 में 1000 में 147 बच्चे अपना फर्स्ट बर्थडे नहीं मना पाते थे, यही तो मतलब हुआ, है कि नहीं? फर्स्ट बर्थडे आने से पहले मर जाते थे। लेकिन अब 2010 में ये संख्या हमारी घट गई, दिस डाटा हैज रिड्यूस्ड, ठीक है। सीधे सीधे 100 का रिडक्शन हुआ, 100 का रिडक्शन हुआ पर 1000। इट मीन्स गवर्नमेंट हैज डेवलप्ड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट्स व्हाई इट हैपेंड, है कि नहीं? गवर्नमेंट ने जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोले, गांव में आंगनबाड़ी बनाई, सुपरवाइजर्स बनाए, आशा बहू बनाए, ठीक है, और बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए, राइट। इसी वजह से तो ये डेथ कम हुई, इनको टीका लगने लगा। सबसे बड़ी चीज़, 1 रुपए की पर्ची बनवा के सारा फैसिलिटी ले सकते हैं, है कि नहीं? तो इसमें अब हर आदमी जो है इसमें जंप करने लगा। जो रिच पीपल है दे हैव टेकन सर्विस ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स, इजंट इट, बट दोज हु आर पुअर दे टुक हेल्प फ्रॉम गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, वेलफेयर प्रोग्राम्स, है कि नहीं? दे यूज गवर्नमेंट्स प्रोसेसेस, ठीक है। दैट्स व्हाई इनफैंट मोर्टेलिटी रेट डिक्रीज, ठीक है। क्रूड बर्थ रेट्स हैव ड्रॉप्ड टू 22.1, ठीक है, टू 7 विद इन द सेम ड्यूरेशन, ठीक है। क्रूड बर्थ रेट, क्रूड बर्थ रेट मतलब क्या होता है? जो बच्चे पेट में मर जाते हैं, दे कुड नॉट बॉर्न अलाइव, दैट इज क्रूड बर्थ रेट, ठीक है। मतलब बच्चे पैदा ही नहीं हो पाए, पेट में ही 7-8 महीने के बाद मर गए,
ठीक है। तो ये जो हमारा क्रूड बर्थ रेट है ये 22.1 से कितना हो गया, रिड्यूस फ्रॉम 22.1 टू हाउ मच, 7, रिड्यूस टू 7, ठीक, 7 बिटवीन 1951 टू 2010, ठीक है। दिस इज आवर क्रूड बर्थ रेट, क्लियर, मीन्स दोज चाइल्ड चिल्ड्रन हु कुड नॉट टेक बर्थ, पैदा होते समय वो जिंदा नहीं थे, मर गए थे, मरे बच्चे पैदा हुए, ठीक है, दैट इज योर क्रूड बर्थ रेट। इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इम्प्रूवमेंट इन चाइल्ड केयर आर यूजफुल इन असेसिंग फ्यूचर प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री, ठीक है। अब हमारा IMR इज रिड्यूसिंग, क्रूड बर्थ रेट इज रिड्यूसिंग, इट मीन्स वी आर प्रोग्रेसिंग, इसी से तो पता चलता है हमने तरक्की किया, वी हैव प्रोग्रेस, इट शोज दैट बिकॉज आवर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हैज बीन रिड्यूस्ड, ठीक है, ये हमारा IMR रिड्यूस हुआ और क्रूड बर्थ रेट रिड्यूस हुआ, इट शोज दैट वी हैव प्रोग्रेस्ड। तो इफ क्वेश्चन कम्स, ठीक है, डिस्क्राइब विद एग्जांपल, ठीक है, हाउ वी हैव मेड प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ मेडिकल सेक्टर, ठीक है, इस तरीके से अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है देन यू हैव टू गिव दीज 2 एग्जांपल्स, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड गवर्नमेंट हैज डेवलप्ड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इस एग्जांपल को आपको लिख करके तब बताना, प्रूफ करना, दिस इज योर क्रिटिकल एनालिसिस, अंडरस्टैंड, एंड यू कैन गिव योर यूज, ठीक है। आप बता सकते हैं, आपसे कोई पूछे कि हमारी सरकार क्या करती है, गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ नहीं करती है, लोग जो है क्या कहते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं गवर्नमेंट को, हमारे कंट्री का कोई डेवलपमेंट ही नहीं हुआ, जैसे था वैसे ही है, बहुत सारे लोग डिस्कस करते हैं, है कि नहीं। तो आप इन सारे पॉइंट पे अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, है कि नहीं, उनको आप बता सकते हैं कि देखिए हमारे जो है हेल्थ वेलफेयर सुरक्षा मतलब जो है इम्प्रूव हुआ, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है रिड्यूस हुआ, क्रूड बर्थ रेट रिड्यूस हुआ, ठीक है, हेल्थ फैसिलिटी बढ़ी, है कि नहीं। तो कैसे कहेंगे कि हमने डेवलपमेंट नहीं किया, है कि नहीं, वी हैव मेड डेवलपमेंट और प्रोग्रेस, ठीक है। तो हियर यहाँ पे इंक्रीज इन लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ इज एन इंडिकेटर ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, इंक्रीज इन लॉन्गेविटी, ठीक है, ठीक है, शोज प्रोग्रेस, है कि नहीं, इट शोज आवर प्रोग्रेस, हमारी जो लॉन्गेविटी है, हमारा जो लाइफ स्पैन है वो लंबा हो रहा है, ठीक है, इट शोज दैट वी हैव प्रोग्रेस इन एवरी सेक्टर, मीन्स हमारी लाइफ की क्वालिटी जो है इम्प्रूव हुई है, ठीक है। इट मार्क्स सेल्फ कॉन्फिडेंस, इससे हमारी कंट्री का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि नहीं। इन सारे जो है डाटा से हम क्या आइडिया लगा सकते हैं, वी आर कॉन्फिडेंट दैट इन फ्यूचर वी कैन इम्प्रूव इट मोर बेटर, हम अपना जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को 47 से रिड्यूस करके 0 पे ला सकते हैं, है कि नहीं। ये 47 तक पहुंचा है 2010 में, अभी 2021 का सेंसस होना बाकी है कि नहीं। देन वी कैन अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, क्लियर। सो इन दिस वे यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम इन्फेक्शन, ठीक है, इंश्योरिंग न्यूट्रिशन अलॉन्ग विद मदर एंड चाइल्ड केयर, ठीक है। कैसे हम लोग इसको करेंगे, पहले क्या होगा, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम इन्फेक्शन, है कि नहीं, फ्रॉम इन्फेक्शन। हाउ विल वी प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम इन्फेक्शन, बाय वॉशिंग आवर हैंड्स यूजिंग व्हाट, सॉप और हैंड वॉश, है कि नहीं, बार बार हाथ धोना चाहिए। वियरिंग मास्क, मास्क पहनने से भी तो इन्फेक्शन दूर होगा, नहीं होगा, है कि नहीं। खाना खाने से पहले हैंड वॉश करना, मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग, है कि नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करने से जो है हम लोग इन्फेक्शस डिजीज से बच सकते हैं,
सैनिटाइजर भी लगाना है। अच्छा हाँ, वो तो कोरोना के लिए कंपलसरी है, लेकिन हर इन्फेक्शन के लिए नहीं है, लेकिन कोरोना के लिए तो जरूरी है ना। ये भी एक तरह का इन्फेक्शन ही है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी, और इसके साथ इंश्योरिंग न्यूट्रिशन, ठीक है, विद मदर एंड चाइल्ड केयर, ठीक है, न्यूट्रिशन टू मदर, ठीक है, एंड चाइल्ड केयर, राइट। इफ वी आर गिविंग न्यूट्रिशन टू मदर ऑल्सो, दोज मदर्स हु आर बियरिंग चाइल्ड, ठीक है, दे शुड बी गिवन न्यूट्रिशियस फूड, है कि नहीं। अगर हम वहाँ पे स्कार्सिटी कर, वहाँ पे अगर इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे तो चाइल्ड जो बॉर्न होगा ही विल बी अनहेल्दी, ठीक है, उसका IQ 0 हो जाएगा, एकदम पागल पैदा होगा बच्चा, है कि नहीं, उसके दिमाग में कुछ रहेगा ही नहीं। अगर मदर को फुल न्यूट्रिशन मिलेगा, है कि नहीं, तो डेफिनेटली द चाइल्ड विल बी हेल्दी एंड मैच्योर। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें हम लोग मेडिकल फैसिलिटीज़ में भी कंसीडर, राइट। तो ये था हमारा हेल्थ का स्ट्रक्चर, और अभी हम आपको दिखाते हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर द ईयर्स, ठीक है। वी हैव गॉट अ डाटा, ठीक है, एंड व्हेन वी इंटरप्रेट दिस डाटा ऑन बोर्ड, देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। I am going to make this table, ठीक है, and you have to tell, right, this data. Bhavya, open page number 24, ठीक है, and I am going to draw, you have to tell me data. कौन से डेट का है आपका डाटा? चेंज नहीं है, 725, ठीक है, ओके। सो अभी हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर ईयर, ठीक है, दिस इज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, राइट। वी विल डिस्कस दिस थिंग। सबसे पहला हमारा है H फॉर हेल्थ, है कि नहीं। इसमें एक है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, उसके साथ क्या दिया है PHC एंड CHC and earlier what it was SC, ठीक है। So here we will consider 1951, 81, 2001, है कि नहीं। 1951, इसके बाद 1981, 2001 और 2010, ठीक है। तो हमारा जो ये हेल्थ वाला है इसका 1951 में कितना है, 1981 में 57,363, ओके। 2001 में 1,63,181, ओके। 2010 1,75,277। सेकेंड क्या है, दैट इज डिस्पेंसरीज एंड हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज एंड हॉस्पिटल्स, ठीक है। इसका डाटा बताइए। 9,000, ओके, 209। इसका 23,555, 555, 43,322, 322, ये 28,472, 470। फिर उसके बाद आपके पास है बेड्स, ओके। यू स्टैंड अप, थोड़े बाहर, हट तुम, हट, एकदम पीछे रखो। हाँ, बेड्स हो गए। बेड्स में कितना है, 1,70,000,
हाँ 198. 198. 5 lakh हाँ 69,495. हाँ 495. 495. इसके 8 बाद lakh हाँ 8 lakh हाँ 70,000. हाँ 161. 5 lakh 5 लाख 76,793. हाँ 793. 700. बेड्स के बाद किसका नंबर है? डॉक्टर्स, एलोपैथिक डॉक्टर्स, दे आर एलोपैथिक के डॉक्टर हैं ये, ठीक है। हाँ 1951 में कितने हैं? 61,800. ओके, फिर 91 2 lakh 68,700. उसके बाद 5 lakh हाँ 3,000. हैं Sir, 03. 900. 8 lakh हाँ 16,623. 629. ओके, and the very last is nursing personnel. Nursing personnel, that is nursing assistant, nurses वगैरह। इनका डाटा क्या है? 18,054. 18,000। Sir, 54. चलो कोई बात नहीं, 1 lakh हाँ 43,887. ओके 7 lakh हाँ 37,000. 37,000. ओके 17 lakh 555. 585। 17 लाख है ना? यस सर। फिर इसके बाद 0 to 555. ओके, सो दीज आर योर डाटा, ठीक है। ये हमारे हेल्थ फैसिलिटी के लिए है, ठीक है। दिस इज रिलेटेड टू योर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें हमारा जो एससी है इसको हम सब सेंटर बोलते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं सब सेंटर, ठीक है। फिर पीएचसी हमारा जो होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ठीक, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। उसके बाद सीएचसी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, यस कम्युनिटी, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ठीक है। ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे हम अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपने देखा कि हमारा जो ये हमारे पीएचसी, सीएचसी एंड एससी जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था, it was only 725 and in coming next 10 years, ठीक है, it has been multiplied many times, है कि नहीं। अभी आप देख रहे हैं 725 से बढ़ करके it became 1981 में 57,363 होने का, ये एक हमारे इस डाटा से ये प्रूव करता है कि दैट आवर गवर्नमेंट हैज इन्वेस्टेड ऑन प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर एंड सब सेंटर, ठीक है। अभी तो ये सब बिल्डिंग खड़ी हुई। फिर इसके बाद 2001 में ये 1 लाख का डिजिट क्रॉस कर गया, ठीक है। ये कहाँ 57,363, इट हैज बिकम जस्ट डबल, है कि नहीं। अब ये 1 लाख में पहुंच गया एंड उसके बाद 2010 में हमारी गवर्नमेंट ने और भी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स बनवाए, राइट। सो देयर इज नो डिक्रीज, देयर इज ऑलवेज इंक्रीज, है कि नहीं। इसका मतलब द कमिंग गवर्नमेंट्स दे आर वर्किंग फॉर पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी, है कि नहीं। अब लोग इसका फायदा ना उठाए वो बात अलग है कि नहीं। अक्सर लोग क्या चाहते हैं, दे वांट क्विक रिलीफ। अक्सर सरकारी जो दवाई होती है वो क्विक रिलीफ, कभी कभी थोड़ा टाइम लगता है ठीक होने में, है ना। तो लोग उस पर कम फेथ करते हैं, सीधे ऐसे डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी बंगाली डॉक्टर के पास, एक गोली दिया ठीक, है कि नहीं, राइट। या कोई ऐसे आदमी को दिखा दिए कि जिसको दिखाते ही ठीक,
है ना। तो लोग उस पर फेथ करने लगते हैं और भीड़ लगा देते हैं, है ना। अब जैसे हमारे डॉक्टर BD वर्मा हैं, RP सिंह हैं, ये लोग हाई पोटेंशियल की दवाई दे देते हैं, तुरंत आदमी ठीक हो जाता है, कहता बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, है कि नहीं। वहीं पे जो होम्योपैथी डॉक्टर हैं उनको बहुत टाइम लगता है, थोड़ा धीरे धीरे ठीक होता है, तो लोग कहते हैं बहुत बेकार डॉक्टर हैं, है ना। तो हम लोग ऐसे प्रीफर करने लगते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा, अगर डिस्पेंसरी की भी बात ले ली जाए तो यू हैव सीन डिस्पेंसरीज जो है हमारी 9,209 से बढ़ करके 23,555 से 43,322, ठीक है, और फिर 28,000 है ना 472 हुआ, इसमें थोड़ा डिक्रीज हुआ, ठीक है, डिस्पेंसरीज एंड हॉस्पिटल्स, राइट। लेकिन ये जो है क्या कहते हैं, कुछ हमारे डिस्पेंसरीज क्यों लॉक कर दिए गए, क्योंकि वहाँ पे सर्विसेज सही नहीं थी, राइट, इसीलिए उसको बंद कर दिए गए बहुत सारी डिस्पेंसरीज, ठीक है। डॉक्टर सही नहीं मतलब ट्रीटमेंट दे रहे थे, दैट्स वाई गवर्नमेंट स्टॉप दिस डिस्पेंसरीज। सप्लाई हुआ लेकिन ब्लैक मार्केटिंग हो गई मेडिसिन की, है ना, वो पकड़े गए, सीज कर दिया गया बिल्डिंग, तो डिस्पेंसरी बंद हो गई, बंद हो गया, क्योंकि लोग ब्लैक मार्केटिंग में पता लगा वो पेशेंट के लिए फ्री में देने के लिए दवाई आई थी, अब उसको उन्होंने मेडिकल स्टोर पे सप्लाई कर दिया। वही एम्प्लॉय उनका खुद का मेडिकल स्टोर है, वो खुद सरकारी में बैठ रहे हैं, अपने भाई को जो है प्राइवेट में बैठा दिए हैं, सारी सरकारी दवाई वहाँ भर दिए, डॉक्टर यहाँ लिख रहे हैं, वो दवा वहाँ से मिल रही है पैसा देके, ठीक है। तो जब इसकी इन्वेस्टिगेशन इसके होंगे, चेकिंग होगी, तो पकड़े जाएंगे, तो डिस्पेंसरी क्लोज की जाएगी। तो ये भी एक रीज़न है, इसमें क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, ठीक है, कि क्यों ऐसा होता है, राइट। इसी तरीके से बेड्स तो आपके हरदम बढ़े, ठीक है, लेकिन बाद में कुछ रिड्यूस भी हुए हैं, राइट। इसके पीछे रीज़न क्या है, डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स, ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स का डेवलपमेंट होने की वजह से नंबर ऑफ बेड्स हमारे कहीं कहीं पे रिड्यूस हुए। ये आपका जो है क्या कहते हैं 1,17,198 बेड थे, अब बढ़ के 5,69,495 बेड, और फिर 8,70,000 और बढ़ गया, 3 लाख बढ़ गया सीधे। और फिर यहाँ पे 2010 में क्योंकि हमारी सर्विसेज अच्छी हो गई इसलिए बेड की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है, तो कुछ बेड्स हमने रिड्यूस कर दिए, क्योंकि अब उतने पेशेंट हो नहीं रहे थे जितना पहले थे। इस समय में तो जो है हमारे यहाँ पे बहुत सारे स्मॉल पॉक्स और बहुत तरह के पेंडेमिक्स एपिडेमिक्स फैल गए थे, इसलिए गवर्नमेंट ने बेड्स रिड्यूस कर दिए, ठीक। लेकिन अब जब कोरोना वाला जब पेंडेमिक स्टार्ट हुआ, फिर गवर्नमेंट ने अब बेड बढ़ाना शुरू कर दिया है, तो ये तो कम ज़्यादा होता रहता है कि नहीं, इट डिपेंड्स ऑन इट्स नीड, है कि नहीं, ज़रूरत के ऊपर इसको घटा बढ़ा सकते हैं बेड्स को। वहीं पे डॉक्टर्स की जब बात आ रही है तो डॉक्टर्स इंक्रीज्ड, है कि नहीं, पहले 61,800 डॉक्टर थे, अब 2 लाख डॉक्टर हो गए 81 में, फिर 5 लाख डॉक्टर हो गए 2001 में, और अब 8 लाख डॉक्टर गवर्नमेंट ने रिक्रूट किए, ठीक है, एक रफ आइडिया है कि नहीं। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं डॉक्टर्स आर इंक्रीजिंग डे बाई डे, है कि नहीं। तो इससे हमारा हेल्थ केयर फैसिलिटी वुड बी अवेलेबल। वहीं पे नर्सिंग स्टाफ की बात कर लें तो नर्सिंग स्टाफ ऑल्सो इंक्रीज, है कि नहीं। दिस डाटा शोज दैट नर्सेज इंक्रीज्ड डे बाई डे, हर 10 साल पे हमारे नर्सेज जस्ट डबल होती चली गई, ठीक है। ये देखो 18,000 था, सीधे 1 लाख पे जंप किया, उससे जंप करके 7 लाख पे पहुंच गए, है कि नहीं, और जंप करके 17 लाख पे पहुंच गए। इट मीन्स रिक्रूटमेंट ऑफ नर्सेज आर मेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है कि नहीं। तो इतनी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हमने प्रोवाइड किए हैं, एंड ओवरऑल इफ देयर इज नो सच अरेंजमेंट, no such facilities, then it is matter of misfortune, okay. So tomorrow we will discuss in coming